Yes, guys, I welcome to you all to Pinnacle Guidance and Tutorials. So, as we all know, today we are going to deal just a second. Yeah, so we are going to deal a new session on time and work. Fine. So, yeah, this is the seventh class of this session, time and work. Fine, where we are not just discussing the concepts, theory, how to solve the questions. Fine, we are also discussing many other examples which are related to them. Fine, you are given time, each video on each question you will be given around 40 seconds to 50 seconds to solve a question. Fine, and then we discuss all the solutions, all the possible ways to solve that question out. Okay, so I request you guys, if you haven't watched my last 6 videos on this session, I really recommend you to go and watch all that series, watch all your missing parts. Fine, no matter you watch on 1.5 or 1.75x. Fine, you just have to watch them. Fine, so let us start with our first question. Here it comes. You have again you are saying that from last 2 sessions, from this session and the last session, I am giving you this options also. Before that I was deliberately not giving you options, because I just wanted you to learn how to solve questions without using options, because many a times options are so close that even you eliminate 2 of them, fine, the remaining 2 will be really a bad dream for you. Okay, so now as there were 5 sessions without options, so I thought let's come up with a new session with option question. Fine, so we are going to discuss some question related to time and work. So you are getting 1 minute to solve this question out. Yeah. Okay, yeah, time up. So what do you think that you have to do in this question? क्या सोच रहे हो क्या करना होगा इस क्वेश्चन में? Okay, so question is like, हाँ, अगर आपने मेरी, if you have attended my last 6 sessions, this is not a repetitive, but the concept which I am going to apply is same. Fine. So the question is like, A and B can do a piece of work in 40 days. B and C can do it in 120 days. If B alone can do it in 180 days, and how many days will A and C to do it together? ठीक है. So मैं हमेशा से आपको एक ही चीज़ कहता आया हूँ, यू हैव टू एज्यूम वर्क इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, अब यहाँ पे एजम्पशन आप क्या लगा सकते हो कि कितना वर्क होगा. अब आप ये सोच रहे होंगे कहाँ पे एजम्पशन लगाना है वर्क का, कहाँ पे नहीं लगाना है. क्वेश्चंस वेयर यू फाइंड इंडिविजुअल, जैसे यहाँ पे आपके सबके अलग अलग एफिशिएंसी आ सकती हैं. ए की आ सकती, बी की आ सकती, सी की आ सकती है, पाइप ए की आ सकती, पाइप बी की आ सकती, पाइप सी की आ सकती है. वहाँ पे आपको लगाने पड़ेंगे assumptions of questions, assumptions of total work. Fine, but where you find कि जैसे इतने number of men, ठीक है, प्लस इतने नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैन डू वर्क इन some number of days,
how and and another some number of days will be taken by इतने number of men and इतने number of children, ठीक है. तो इससे आप कितने नंबर फिर पूछे जाए, मतलब कितने नंबर ऑफ डेज विल बी यूज फॉर सम मैन एंड सम चिल्ड्रन. वहाँ पे यू कैन नॉट एज्यूम वर्क, क्योंकि वहाँ पे आपको दो इक्वेशन दे दी गई हैं, ठीक है, फ्रॉम विच यू हैव टू फाइंड वर्क, और उसके बाद आपको टाइम निकालना है. यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं दी गई है, ठीक है. फाइन, ओके. सो लेट अस मूव ऑन विद द आंसर्स. सो आंसर इज लाइक, ये देखिए, अब वर्क कैसे लेना है वो मैंने आपको वापस से बता दिया था. लेट मी अगेन कंक्लूड इट कि एलसीएम ऑफ ऑल द नंबर ऑफ डेज दैट आर रिटन इन योर क्वेश्चन, ये कितना दिया है, 40 दिया है. फाइन. कितना दिया है, 120 दिया है. फाइन. ओके, ये कितना दिया है, 180 दिया है. फाइन. ये तो हो गया आपका एक मेथड, नो इश्यूज. ये आपका हो गया एक मेथड, ठीक है. आप लेट कर लो, एज्यूम कर लोगे, ठीक है. देन यू विल फाइंड दी ए और बी की एफिशिएंसी आपके पास वहाँ से आ जाए कुछ 40, 120 और 180 का आपके पास. जो भी आप देखेंगे, आपका वर्क जो भी आप एज्यूम करेंगे, ठीक है, वो अराउंड 360 हो जाएगा, ठीक है. सो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी. ए प्लस बी की एफिशिएंसी इज 9, क्योंकि 360 डिवाइड बाई 40 इज 9. फाइन. उसके बाद देख रहे हैं बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी. बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, ठीक है. तो उसके बाद क्या देख रहे हैं, बी एलोन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 होगी. तो वहाँ से हम लोगों को ये पता चल गया ए की बी की एलोन एफिशिएंसी 2 है, ठीक है. बी प्लस सी की बी की एलोन एफिशिएंसी 2 कैसे आई, 360 डिवाइड बाई 180 कितना होता है, 2. यहाँ से बी प्लस सी की एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी कितनी थी, 3 थी, ठीक है. तो सी की एफिशिएंसी 1 निकल आएगी, एंड ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी 9 थी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकल आएगी, 7. फाइन. एनी इश्यूज, नो. ओके. सो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, फाइन. अब टोटल एफिशिएंसी जितनी आपकी ए और सी की ऐड होके आएगी, उसको आप 360 से डिवाइड कर देना, वो आपका टोटल नंबर ऑफ डेज दे देगा, ठीक है. ये तो हमारा हो गया फर्स्ट मेथड. अब हम लोग सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं, ठीक है. सेकंड मेथड कैसे होगा, हाँ, एंड ये आपका होमवर्क है. जिस प्रोसीजर से मैंने आपको बताया है, पूरा टोटल नंबर ऑफ वर्क एज्यूम करके, उस प्रोसीजर को आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है. ये आपका होमवर्क है. सो ए प्लस बी कितने दिन लेते हैं, 40 डेज लेते हैं, ठीक है. बी अलोन टेक्स 180 डेज, ठीक है. तो ए विल टेक हाउ मेनी डेज, 1/40 माइनस 1/180. ये एक दिन का वर्क दिया जा रहा है, एक दिन में 40, ये एक दिन का वर्क, ठीक है. तो 7/360 मतलब 360/7 डेज, इतने ए अकेला काम करने के लिए देगा. बी प्लस सी के 120 लेता है, बी अलोन टेक्स 180, तो सी अलोन विल टेक 120 माइनस 180, तो 1/360. फाइन. सो ए एंड सी टुगेदर विल टेक 8/360, दैट इज इक्वल टू 45 डेज. फाइन. सो सिंपल. एनी इश्यूज, नो. ओके. So let me go to the next question. So your time starts now. Fine. Okay.
So yes, moving on with the question. Okay, so today, okay, so मैंने आपको, if you have seen all my previous sessions, all my 6 previous sessions, वहाँ पे आपको लगा होगा that मैंने assumption of work करके ही solve किया है, ठीक है. So today in this session I'll be solving not by assuming work, ठीक है. इससे आपको डिफरेंस पता चलेगा, जिसको ये अच्छा लगता है ये ठीक लगे, बट यहाँ पे आ जाते हैं फ्रैक्शन चीज़ें. सो आप फ्रैक्शन को तो विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था. है तो ये भी ठीक है. अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी कैन डू this work in 16 days, ठीक है. A started the work alone. After how many days should B join so that the work is finished in 9 days, ठीक है. अब आप क्या कर सकते हो, A और इसका A और B का नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 12 है और एक 16 है, तो 48 आप ले सकते हो ना 48. फाइन. तो 48 की जगह अगर आप, तो फिर ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की अगर 3 है 12 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई, सॉरी 4 आ गई, आई एम सॉरी. फाइन. बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 16 3 48. बी की एफिशिएंसी आ गई 16 3 48, ठीक है. तो उसके बाद ए स्टार्टेड टू वर्क एलोन, ठीक है. अब हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, ए ने मतलब 4 की एफिशिएंसी से सिर्फ x दिन काम हुआ है, ठीक है. और रिमेनिंग 9 माइनस एक्स, क्योंकि बोला गया कि 9 दिन में सब काम कंप्लीट हो गया, 9 माइनस एक्स 4 प्लस 3, क्योंकि ए और बी दोनों काम कर रहे हैं उस दिन, शुड बी ज्वाइन हिम, मतलब दोनों काम कर रहे हैं. तो कितने एफिशिएंसी, इसकी ए की एफिशिएंसी 4 थी, बी की एफिशिएंसी 7 थी. 7 इज इक्वल टू कितना, हम लोगों ने कितना एज्यूम किया था, 48. कोई इशू, तो हमारे पास इक्वेशन बन के आती है 4x प्लस 9 माइनस एक्स इंटू 7 इज इक्वल टू 48, ठीक है. तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको x मिल जाएगा. फाइन. तो वहाँ से आपका सब सोल्यूशन आ जाएगा. ओके. सो अब हम लोग सेकेंड इसका वे डिस्कस करते हैं, ठीक है. सो सेकेंड वे है, एज वर्क इन 9 days इज 9/12, क्योंकि वो 12 दिन रहता है, तो 9 दिन में 9/12 मतलब 3/4. रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 1/4. अब ये 1/4 कौन करेगा, वो 1/4 बी करेगा, ठीक है. दिस वर्क, अब ये बी कितने टाइम में ख़त्म कर लेगा, 1/4 इंटू 16, ये 16 क्या है, ये 16 डेज में ये बी पूरा ख़त्म करता है, तो 4 डेज में. फाइन. तो बी कितने दिन में ख़त्म करेगा, 4 दिन में. तो अब कितने टाइम बाद उसे ज्वाइन करना चाहिए, 9 माइनस 4 5 डेज बाद, क्योंकि सिर्फ 4 दिन में, तो लास्ट के 4 डेज में, ठीक है. तो कितना हो गया, 9 माइनस 4 5 डेज. फाइन. एंड यस, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द क्वेश्चंस, या मैं दोनों मेथड आपको सिर्फ बता रहा हूँ वर्बली, अगर किसी को चाहिए तो मैं इसकी एक और वीडियो निकाल दूंगा सेम क्वेश्चंस की विद सेकेंड मेथड ऑल्सो, सो दैट यू कैन कंपेयर. अगर आपको चाहिए यू कैन मैसेज मी, यू कैन कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, और मेरा मेल भी होगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है. तो आप वहाँ पे मुझे मेल भी कर सकते हो. फाइन. ओके. सो मूविंग ऑन विथ द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये 5 समझ में आ गया ना, वो लास्ट के 5 डेज ही बी ज्वाइन करेगा ना, स्टार्टिंग के वो लास्ट के 4 डेज बी ज्वाइन करेगा, ना कि स्टार्टिंग के 4 डेज, इसलिए 9 माइनस 4 किया है, 5 डेज आया, ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Okay, so let us resume. Fine. Okay, so the question is like, A can do a piece of work in 10 days, B can do the same work in 20 days. With the help of C, they finish the work in 4 days. So in how many days, in how many days working alone? C can, वो बोल रहे हैं A alone 10 दिन में कर लेता है, B alone 20 दिन में कर लेता है. तो अब यहाँ से, और सी उन लोगों की ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग एक साथ काम करते हैं तो वो 4 दिन में कर लेते हैं. तो अब क्वेश्चन ये है कि सी कितने दिन में अकेले वो काम कंप्लीट करेगा. फिर वही, ये सारे आपके जो क्वेश्चन है ना, ये मीडियम लेवल के हैं, कोई इजी लेवल के क्वेश्चन है नहीं, मीडियम से डिफिकल्ट लेवल के बीच में ये क्वेश्चन है. फाइन. सो पहला मेथड मैं आपको यहाँ पे बस डिस्क्रिप्शन में समझा देता हूँ क्या होगा. कि 10 हुआ, 20 हुआ, 4 हुआ, इसका एलसीएम क्या आएगा, 20 आ जाएगा. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्क एज्यूम कर लो 20. ठीक है, अब ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 20/10 2 हो जाएगी. बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 20/20 1 हो जाएगी. ठीक है, तो अब हम लोग की टोटल नंबर और टोटल एफिशिएंसी, वो ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग काम कर रहे हैं, तो कितने दिन काम कर रहे हैं, 4 डेज काम कर रहे हैं. ठीक है, और वो कितना टोटल काम कर रहे हैं, 20 जो हम लोगों ने एज्यूम किया था. तो हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट के अंदर ए की एफिशिएंसी 1 प्लस बी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 2 प्लस बी की एफिशिएंसी 1 प्लस सी की एफिशिएंसी. फाइन. सो अब इन टोटल क्या हुआ, इज इक्वल टू 20. ठीक है, तो 4 से यहाँ 20 कट हुआ, 4 से यहाँ 20 कैंसिल हुआ तो 5 बचा. तो हमें वहाँ से पता चला C की एफिशिएंसी इज इक्वल टू 2 है. ठीक है, अब C की एफिशिएंसी 2 है तो और टोटल वर्क कितना है, 20 है, तो 20/2 कितना हुआ, 10 डेज. आंसर कितना है, मतलब है आंसर 10 डेज. अब हम लोग इसका सेकेंड मेथड डिस्कस करते हैं. ठीक है, ओके. ये आपको लग रहा है कि वो भी 3 लाइन से या 2 लाइन से ज़्यादा का वो भी क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, ओके, सॉरी. So their combined 4-day work will be 1/10 plus 1/15, A और B का. Fine, 3/5. Okay, so remaining work कितना आ जाएगा, 1/3/5, तो 2/5. अब ये 2/5 कौन कंप्लीट कर रहा है, ये 4 कंप्लीट कर रहा है. फाइन. Any issues? And hence he can complete the work. अब 2/5 वर्क कंप्लीट करना है 4 दिन में, तो उसका अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे तो 5/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 10 डेज. फाइन, ओके. चलो आगे बढ़े. ओके, सो यू आर गेटिंग 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट. ओह, आई रियली मिस, आई जस्ट सॉ इट. ये यहाँ पे 15 नहीं होगा, ये यहाँ पे 20 ही होगा. ठीक है, तो उससे हुआ क्या, ये दोनों कंबाइंड वर्क 4 दिन कितने कर लेते हैं, 3/5. ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाता है, 2/5. दिस मीन्स सी अब 2/5 वर्क कर रहा है 4 दिन में, तो ये टोटल कंप्लीट वर्क कितना हो जाएगा, सिर्फ 2/5 वर्क कर रहा है 4 दिन में. ठीक है, तो कंप्लीट वर्क कितना हो जाएगा, 5/2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 10 डेज. फाइन, ओके. आप अगर ऐसे भी नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे देखिए, 2/5 वो कर रहा है 4 डेज में, और 2/5 वो करेगा 8 डेज में. ठीक है, और 2/5 कर रहा है 4 डेज में, तो 1/5 कितने डेज में करेगा, 2 डेज में करेगा. फाइन. सो कितना हुआ, 5/5 2/5 से कैसे बनेगा, 1/5 प्लस 2/5 प्लस 2/5, मतलब 2 + 4 + 4, तो कितना हो गया, 4 + 4 + 2 इज इक्वल टू 10 डेज. अगर ये आपको रेसिप्रोकल नहीं समझ में आ रहा है. फाइन, ओके, सॉरी.
Okay, so yes, should we move to our next question? Okay, so यहाँ पे ठीक है, अब मैंने क्या किया, फोर्थ क्वेश्चन को मैंने दूसरे वे से किया है सो दैट आप विजुअलाइज कर पाओ और आप एक बार समझ लो कि कैसे मतलब मैं लास्ट में सिर्फ बोलता आ रहा हूँ, मैंने किया नहीं है, ठीक है। सो अब आप देख लो कि कैसे होता है। अगर आपने प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, मतलब लास्ट की 6 वीडियोस नहीं देखी हैं, सो प्लीज़ उसे जाके देखिए, लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइन, ओके। सो मूविंग ऑन विद द क्वेश्चन, डाकू टमाटर, हाँ बहुत वियर्ड नाम है, आई नो, बट स्टिल क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है ना, +3 या +2 इसी के नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। डाकू एंड टमाटर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 70 and 60 days respectively. They began the work together, but Daku leaves after some time, but Tomato finished the work in 47 days. ठीक है, तो आफ्टर हाउ मेनी डेज डाकू लीव, बस स्केलेटन ऑफ द क्वेश्चन तो वही रहेगा। अब स्केलेटन क्या रहेगा कि टोटल वर्क एज्यूम कर लूँगा। अब कैसे, अब इसको नहीं मुझे इंक्लूड करना है, क्यों? क्योंकि वो प्लस के टर्म में आएगा, जो प्लस के टर्म में आएगा उसको एलसीएम में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि रिमेनिंग वर्क इन 47, तो मतलब और उसे 47 डेज चाहिए, तो 7 और 60 का ही एलसीएम कितना होता है, 7 6 जा 42, यस 420 यूनिट्स हम लोग को वर्क लेना है। सो लेट द टोटल वर्क बी 420। सो डाकू की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 420 डिवाइड बाई 70, डाकू कैन डू इन 70 डेज, तो 6 यूनिट पर डे। टमाटर की एफिशिएंसी 420 बाई 60 मतलब 7 यूनिट, टमाटर की 60 डेज, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ डेज बी x, हम लोग ने एज्यूम कर लिया, ठीक है। ओ एक्स क्या है, दे बिगैन टू वर्क, बट डाकू ने कितने टाइम तक काम किया, टुगेदर कितने टाइम तक काम हुआ है, एक्स नंबर, ठीक है। तो एक्स दोनों की एफिशिएंसी काम कर रही है, तो 6 + 7 प्लस, अब ये 47 क्यों लिखा है, रिमेनिंग वर्क सिर्फ टमाटर कर रहा है 47 डेज, रिमेनिंग वर्क इन 47, ठीक है। यहाँ पे ये ना समझिए टोटल वर्क, ठीक है, रिमेनिंग वर्क उसने 47 किया है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी, सिर्फ एक टमाटर काम कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी, 7, ठीक है। तो 47 × 7 इज इक्वल टू ये टोटल 420। अब यहाँ से अब आप कैलकुलेट करेंगे, 13x इज इक्वल टू 91, x इज इक्वल टू 7, ठीक है, फाइन। And yes, I am again and again saying it to you that अपने benefit के लिए 1 से लेके 30, ठीक है, स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड उसके टेबल्स प्लीज़ आप मगअप कर लो, सो दैट आपके लिए कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। और वो कैलकुलेशन से फास्ट सिर्फ आपका यही होगा, जो आपके कम लगते हैं, आपके अभी ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। तो बस चांस, जैसे आपके टाइम कम हुए, आंसर सही हुए, चांसेस आपके क्रैक करने के बहुत इजी हो जाते हैं। आपका कोई भी हो, चाहे कोई आ जाए, क्योंकि मैं सारी चीज़ें सिखाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्रेश कोई भी लगेगा आपको कोई भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, you are getting 1 minute to solve this question out. फाइन, ओके, काफ़ी टाइम मिल गया था और ऐसे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ पहले। अब तो ये क्वेश्चन फाइनली हम लोग
दोनों वे से करेंगे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, अजय एंड विजय अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन फॉर ₹480। यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। पहला कि जितना हो एफिशिएंसी पे काम करना है, सेकंड कि जितना ज़्यादा जिसकी एफिशिएंसी उतना ज़्यादा उस का शेयर, ठीक है। अगर राम और श्याम में राम 2 ईंटें उठा के 1 घंटे में एक वॉल ए से वॉल बी पे रख रहा है, ठीक है, और श्याम 4 ईंटें उठा के वॉल ए से वॉल बी पे रख रहा है, ठीक है। दैट मीन्स राम जो ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है, तो उसकी पे भी ज़्यादा होगी। तो अगर टोटल 5 लेटर सपोज दोनों को 700 रुपीज़ मिले, ठीक है, तो उस हिसाब से 400 राम को मिलने चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा काम कर रहा है, और शाम को 300। अब ये कैसे डिवीजन हुआ, क्योंकि वो 4 ब्रिक्स का इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है और ये शाम 3 ब्रिक्स का इधर से उधर। फाइन, ओके। सो अजय कैन डू इट अलोन इन 75 डेज वाइल विजय कैन डू इट अलोन इन 40 डेज। अब ये समझ लीजिए विजय को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। विद द हेल्प ऑफ प्रदीप दे फिनिश द वर्क इन 25। अब विद द हेल्प क्या, वो सारे लोग प्रदीप, विजय और अजय, विजय, प्रदीप एक साथ जब काम करते थे तब वो लोग 25 डेज में फिनिश करते हैं। तो हाउ मच शुड प्रदीप गेट फॉर हिज वर्क, ठीक है। प्रदीप की एफिशिएंसी निकालो, वहाँ से पेमेंट पता चल जाएगा। फाइन, ओके। सो इन 24 डेज, ठीक है, इन 24 डेज दे वुड हैव डन 1/3 और 5/8 ऑफ द वर्क, ठीक है। The remaining will be 1 minus 1/3 plus 5/8. Any issues? Okay. So 1/24. Thus, this means Pradeep has done 1/24th of this work. So, जितना काम किया उतना उसे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये है आपका वो वाला काम, स्ट्रेट मैंने सिंपल रखा एंड स्ट्रेटली। अब ये देखिए थोड़ा सा इसको विजुलाइज करने में डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं कौन से कॉन्सेप्ट से, यस उसी वाले कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे क्या है, टोटल वर्क कितना है 600 एज्यूम किया। कैसे एज्यूम किया, यहाँ पे देखिए 75 40 25, यहाँ से मैंने एज्यूम कर लिया 600 एलसीएम निकाल के, ठीक है। ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए की एफिशिएंसी हो गई 600 डिवाइड बाई 75, कितना है 600 डिवाइडेड बाई ए कैन, अजय कैन डू वर्किंग 75 डेज, ठीक है। विजय की एफिशिएंसी वो 40 डेज में काम कर रहे, विजय अलोन कैन डू इन 40 डेज, ठीक है। सो इसकी एफिशिएंसी हो गई 15, इसकी ए की एफिशिएंसी हो गई 8 यूनिट्स पर डे। प्रदीप की एफिशिएंसी को पीईएफ मैंने मान लिया, तो 25 दिन सारे लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए विद द हेल्प ऑफ प्रदीप दे कैन फिनिश द वर्क इन 25 डेज। सो इन 25 डेज सारे लोग मिल के काम कर रहे हैं, 8 भी मतलब अजय भी, विजय भी और ये प्रदीप भी, ठीक है। और कितना काम हो रहा है, जितना आपने एज्यूम किया 600। तो प्रदीप की एफिशिएंसी कितनी निकल आएगी 1 यूनिट। अब प्रदीप की जितनी एफिशिएंसी है और वो कितने उसमें है 1/8 काम कर रहा है, ठीक है। 8 कौन है, अजय, 15 कौन है, विजय, और खुद एक प्रदीप, ठीक है। तो 1/24, ठीक है, इंटू 480। अब 1/24 इंटू 480 ₹20। यही इसने यहाँ पे भी लिखा है, एग्जैक्टली इसने यही यहाँ पे वो काम कर दिया था, और कुछ भी नहीं डिफरेंस था। बट इसको थोड़ा यहाँ तक आपको लाने के लिए विजुअलाइज थोड़ा ज़्यादा करना पड़ जाता है, उसको विजुअलाइज थोड़ा कम करना पड़ता है, इसलिए। फाइन, सो यस ऑल माय डियर फ्रेंड्स, कंक्लूजन में तो मैं हर वक्त यही डालता हूँ क्योंकि यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है टाइम और वर्क के लिए। तो यही होता है कि एज्यूम वर्क वेयर एवर नीडेड, जहाँ जहाँ पे आपको काम है। यहाँ पे देखिए पांचों क्वेश्चन को पांचों में मैंने एज्यूम करके सिंपल कर दिया, एक कैलकुलेशंस ऐसे सिंपल होते हैं। अब मैं कुछ 100 वो एज्यूम कर लेता, 5 एज्यूम कर लेता, उससे मेरा कैलकुलेशन ईजी नहीं होता। कैलकुलेशन कैसे ईजी होगा, जब मेरे पास फ्रैक्शन नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा, ठीक है। अब एफिशिएंसी पे ही आपको सारे काम करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस देखे सारे एफिशिएंसी पे ही काम होते हैं,
ठीक है। और लास्ट के क्वेश्चन में आपने देख ही लिया, जितना आपका एफिशिएंट होंगे कोई भी पर्सन, कोई भी टैप, कुछ भी होल वगैरह कुछ भी, उतना उसका पेमेंट होगा, ठीक है। या उतनी ही अगर होल की बात आती है, जितना उसका बड़ा वो होगा, क्या बोलते हैं, डायमीटर, उतना ज़्यादा उसका फ्लो इन या फ्लो आउट होगा। यहाँ पे जितना ज़्यादा एफिशिएंसी होगी बंदे की, या फिर मतलब जो भी काम कर रहा है वर्कर की, तो उतना ज़्यादा उसको पेमेंट में उसका वो मिलेगा, उसका पेमेंट में उसका शेयर होगा। फाइन, ओके। सो यस, मुझे पता है, प्लीज़ मत जाइए कहीं। यस, थैंक यू। 1 मिनट और रुक जाइए। यस, अब आपके लिए मैंने देखिए पूरी वीडियो बनाई है, बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस माय न्यू कंटेंट। अब न्यू सेशंस आएंगे और भी ज़्यादा मैं क्वेश्चंस लाऊंगा। मैंने आपसे वादा किया है ना, 100-120 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा इसमें, ठीक है। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड यस, डोंट फॉरगेट, अगर आपको कोई भी डाउट हो, राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और आपको मेरे email ID, you will get my email ID in the description of this video, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो अपनी क्वेरी, you can mail me also, fine. So please, happy learning guys, do like and share, fine. Okay, ending the video guys, bye.